Good morning to all. Already we solved some practical problems in last class. Today just I am trying to solve some more problems from your question booklet जोटा दिया दिला तो already any doubt in some basic in cost sheet? Any doubt? I hope कुछ डाउट नहीं होगा। तो मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पर कि लास्ट क्लास मैंने ऑलरेडी हमें पढ़ी थी जो व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एक्सपेंस, what is the meaning of cost accounting, cost control, cost reduction, what are the basic division of cost. So there are these are the few main basic and fundamental terms which I have already taught in my last lecture. I hope you all are clear about all of these things. So today we solve some problems. Few of students yesterday call me and ask some doubts. I am trying to solve these particular questions, and you just watch carefully and try to understand the point in detail. So let us see question number 8. Question number 8. Following extracts of costing information relates to commodity A for the half year ending 31st December 2012. So these are the few cost records. Purchases of raw materials 1,20,000. Wash overhead 40,000.
direct wages 1 lakh rupees, carriage on purchase 1440, stocks 1st July 2012, रॉ मटेरियल्स, इसका मतलब तो ये ओपनिंग वाला है, रॉ मटेरियल्स 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस 4800, finished goods rupees 16,000 in tons, that is 1,000 tons. Again, stocks 31st July 2012, sorry, 31st December 2012, raw materials 22,240, WIP 16,000, finished goods, stock of finished goods 32,000, टन में दिया है 2,000 टन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रुपीज 8,000, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स रुपीज 3 लाख, again selling and distribution overhead are rupees 1 per ton sold, tons of commodity ware produced, during the period, prepare statement of cost and profit. So this is the question. This is the question of cost sheet. So first, already I have told you that first you identify which cost considered as direct and which cost considered as indirect.
that means which cost come under factory overhead and administrative overhead and selling overhead and distribution overhead. Accordingly, just you present those costs as per the specimen of cost sheet. So here in this particular question, purchases of raw material rupees 1,20,000, works overhead 40,000, direct wages 1 lakh, carriage on purchase, that means carriage inward 1,440, 1,440 rupees, stock 1st July 2012, that means opening. These are opening stock, opening. So these are closing. These are the closing stock of raw material, WIP, finished goods. तो ये टिपिकल वाला कॉस्ट शीट होगा। इसमें यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मटेरियल दिस अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐसा नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का। अगर हम देखें रॉ मटेरियल का पहले ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है और इसमें क्लोजिंग भी दिया है, कैरेज ऑन परचेज भी दिया है। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो कितना मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में, हाउ मच अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। तो फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई फाइंड आउट। तो क्लियर क्वेश्चन। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 8,000 है, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट मीन्स सेल्स 3 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्ट नहीं दिया है, आर ₹1 पर टन सोल्ड, जितना यूनिट सोल्ड हुआ इसमें नहीं है, ये सेल यूनिट नहीं है, इसमें यूनिट सोल्ड, इसमें यूनिट सोल्ड, इसमें यूनिट सोल्ड तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यूनिट प्रोडक्शन दिया है 16,000 टन, 16,000 टन्स ऑफ कमोडिटी वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर हाफ ईयर। तो मैं कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31st December 2012। देखो इसमें ये तो तुम्हारा हो गया डिटेल्स, ये दिस वन इज अमाउंट कॉलम। हियर we need to make a separate unit column। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, यूनिट इंफॉर्मेशन है इसमें, फिनिश गुड्स का यूनिट दिया है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का भी है, तो कुछ प्रोडक्शन हुआ है, तो बेटर होगा कि यूनिट कॉलम में कर देंगे यहाँ पर सेपरेटली। ये तुम्हारा हो जाएगा क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी ब्रैकेट में तुम लिख दो टन, और ये वाला तुम्हारा पर्टिकुलर्स। तो पहला क्या करेंगे, पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है कॉस्ट शीट का, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये तुम्हारा जो मटेरियल ये जो है ये तुम्हारा डायरेक्ट पार्ट है, अप टू प्राइम कॉस्ट, द सम टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट आइटम ऑफ कॉस्ट
इज योर प्राइम कॉस्ट, इज योर प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कितना अमाउंट का है, क्वेश्चन में देखेंगे ना। परचेजेस दिया है, वार्स ओवरहेड, वार्स वार्स मतलब क्या है, फैक्ट्री और प्रोडक्शन। डायरेक्ट वेजेस, कैरेज ऑन परचेज दिया है। और तो डायरेक्ट मटेरियल इज एब्सेंट इन दिस क्वेश्चन, तो वी फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट, तो फर्स्ट स्टेप होगा वो आरएमसी होगा, वो आरएमसी फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आरएमसी फाइंड आउट करेंगे। आरएमसी मतलब क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल यूज्ड, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्शन में। तो कैसे, इसका ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं ओपनिंग स्टॉक का बात कर रहा हूं, तो 1 जुलाई रॉ मटेरियल्स 20,000 है, तो लिखेंगे यहां पर 20,000, उसमें ऐड करेंगे ऑलरेडी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना यूनिट, कितना परचेज हुआ रॉ मटेरियल दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,20,000 गिवन है, 1,20,000। तो ये हो गया तुम्हारा 1,40,000। और परचेज रिलेटेड कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन खर्च एक्सपेंडिचर। यहाँ पर लिखा है ना कैरेज ऑन परचेज, क्लियरली लिखा है कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर से टू प्रोडक्शन प्लेस, टू गोडाउन जो खर्चा हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन उसको बोला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट, तो उसको ऐड कर देंगे। फ्रेट और कैरेज इनवर्ड ऑलवेज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट, तो सो इट विल बी एडेड कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन सेल मतलब कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड होगा, कितना दिया है, अमाउंट कितना है 1440, 1440 ऐड कर दो, 141440 हो जाएगा। लेस अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक अभी भी है तो उसको हम माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसमें है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 22,240, 22,240 उसको माइनस करेंगे। उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हो गया 1,19,200। ये तुम्हारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सॉरी बेटर होगा यहाँ पर 1,19,200। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या गया, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। हो गया, फिनिश। नेक्स्ट स्टेप इज योर, वी नीड टू फाइंड आउट एनी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट लेबर दिया है ना, डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर सेम है। डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है ना, ऐड करेंगे।
10,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज दिया है, तो 1 लाख ऐड कर देंगे। ओके, प्राइम कॉस्ट तुम्हारा आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज वी शैल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इफ देयर इज एनी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंडिचर एंड वो इनडायरेक्ट अगर कुछ होगा क्वेश्चन में तो वो लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वार्स ओवरहेड लिखा है, क्लियरली लिखा है वार्स ओवरहेड। वार्स मतलब क्या है, फैक्ट्री। तो 40,000 डायरेक्टली दिया है, 40,000 इसको ऐड कर देंगे। 2,59,200 ये तुम्हारा आ गया क्या, ये तुम्हारा आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसको हम बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि इसमें है ना WIP का स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिस वन 4,800 और क्लोजिंग WIP दिया है। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP नहीं होता तो ये डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट लिखा था, लेकिन है तो एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। ओपनिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक। कुछ काम बाकी है तो वो पहले खत्म होगा। 4,800 ये हो जाएगा 2,64,000 लेस। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस हो, माइनस हो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 16,000 माइनस हुआ। $2,48,000 ये तुम्हारा आ गया वार्स कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और जिसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड लिखा है क्वेश्चन में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज ₹8,000 लिखेंगे यहाँ पर। $2,56,000 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया 2,56,000 ये जो तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,56,000। तो कितना यूनिट, मैंने बोला था कि ये जो यूनिट कलम है यहाँ पर क्वांटिटी टन लिखा है, यहाँ पर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इसके बाद लिखेंगे कि कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन एक्चुअल हुआ उस पर्टिकुलर पीरियड में, 16,000 टन। तो लिखेंगे यहाँ पर 16,000। टन प्रोडक्शन हुआ। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स टू
to produce 16,000 tons of product, the cost is 2,56,000. The cost is 2,56,000. उसके बाद क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफसी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्वांटिटी भी दिया है 1000 टन, 1000 टन वैल्यू भी इसका। मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाता है। तो 1000 टन 16,000, 1000 टन क्वांटिटी कॉलम में और 16,000 यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 17,000 क्वांटिटी। सिमिलरली अमाउंट भी आ जाएगा, अमाउंट भी आ जाएगा 2,72,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफसी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है 2000 टन, 2000 टन, 2000 टन, तो माइनस करेंगे 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ गया। उसका वैल्यू कितना दिया है 32,000, वैल्यू कितना दिया है 32,000, 2,40,000, 2,40,000। लेकिन मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मैं प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट में होगा। कॉस्ट रेट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट, इज ऑलवेज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट हम कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट कैसे आएगा, मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी 32,000 दिया है, तो इसको हम वर्किंग नोट में करेंगे, नहीं करेंगे तो 32,000 हो गया। अगर नहीं होता तो ये तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो एक रेट, पर्टिकुलर रेट आ जाने के बाद उसको हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उस क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वांटिटी दिया होगा 2000 टन में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में उसको ऐड करेंगे टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब है दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट सेल हुआ उसका अगर वैल्यू देखेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा, और सेल कितना हो गया 15,000, सेल हो गया 15,000 सेल हो गया। तो इसके बाद और एक है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है यहाँ पर, ₹1 पर टन सोल्ड, जितना टन सोल्ड हुआ है इसके ऊपर तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेशन होगा। और पर टन के लिए खर्चा हो रहा है ₹1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो करेंगे क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा क्वेश्चन बुकलेट में जो मैंने दिया था, जो 10-11 क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना,
उसके बाद और थोड़ा सा ये थोड़ा सा हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब है CGS। हम फाइंड आउट किए ना 2,40,000, क्वांटिटी दिया था 15,000, 2,40,000, 2,40,000। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा इंटेंशन क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आफ्टर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन वी ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पर लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹1 पर टन सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर टन सोल्ड, कितना टन सोल्ड हुआ है फाइंड आउट किया ना, दिस वन। अरे टन सोल्ड कैसे आएगा, मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा सोल्ड, कितना क्वांटिटी सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक इसमें इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 16 था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 16 नहीं था, 1000 था प्लस 16,000 प्रोडक्शन हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 2000 है, तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा 15,000 टन। तो ये वाला तुम्हारा यूनिट सोल्ड है। तो ये ऑलरेडी हम एक दिस पर्टिकुलर कॉलम में कैलकुलेशन किए, तो और सेपरेट वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है यहाँ पर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹1 पर टन सोल्ड कितना हो गया 15,000। ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 2,55,000 ये तुम्हारा हो गया क्या टोटल कॉस्ट। क्लियरली लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ गया। और यहाँ पर थोड़ा गैप कर देंगे, थोड़ा गैप करेंगे, गैप करके यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, जितना यूनिट सोल्ड हुआ है ना, सेल कितना हुआ था 3 लाख, सेल कितना है 3 लाख। आंसर आ जाएगा 45,000, 45 ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट, तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इन दिस पर्टिकुलर। तो सेल इज मोर देन द टोटल कॉस्ट, ऑब्वियसली देयर इज ए प्रॉफिट 45,000, आंसर भी वही। क्लियर କେते पिला देखो, केते पिला देखो अच्छे जो जाए जेते पर्यंत जीव कौन करिया। तो सेल 3 लाख और प्रॉफिट तुम्हारा 45,000। क्लियर। जी
machine hour worked 900 hours, और तुम्हारा दिया है machine hour rate, machine hour rate, machine hour rate ₹5। machine hour work इसका मतलब क्या है? machine 900 आवर्स रनिंग हुआ, जो काम हुआ प्रोडक्शन के टाइम में मशीन चलेगा, मशीन तुम्हारा इतना घंटे मशीन ऑपरेट हुआ, तो इसके लिए मशीन का जो खर्चा है वो पर आवर के रेट में मेजर होता है। तो ये रेट दिया होगा क्वेश्चन में ₹5। तो टोटल ये मशीन का जो खर्चा है, ये मशीन एक्सपेंसेस है, ये तुम्हारा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। सिंपली तुम कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ₹4,500, ये तुम्हारा हो जाए फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। तो सिमिलर, और इसके बाद तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक और सेलिंग, थर्ड तुम्हारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट करोगे, वर्क कॉस्ट कैसे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, इसे इसमें से तुम्हारा एडजस्टमेंट करोगे जो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, अगर है क्वेश्चन में तो। नहीं, क्वेश्चन में ओवरहेड ऐड कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके बाद तुम्हारा एडजस्ट करोगे ओपनिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG करोगे तो COGS आ जाएगा, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो उसके बाद उसमें सेलिंग ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड अगर कुछ होगा तो दिया है 50 पैसा पर टन सोल्ड, 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, 50 पैसा जितना यूनिट सोल्ड हुआ है, सोल्ड हुआ है कितना यूनिट सोल्ड हुआ है यहाँ पर, सिंपल प्रोडक्ट्स मैंने बोला था ना, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, वर्किंग नोट, ये तुम्हारा वर्किंग नोट, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड कैसे करोगे? फाइंड आउट करोगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG कितना क्वांटिटी का है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG 2000 प्लस प्रोडक्शन, प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दिया है 17,100 दिया है, 19,100 हो जाएगा, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है इसको, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा सोल्ड दिया है, लेकिन यूनिट कितना सोल्ड है, तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सोल्ड कितना है यूनिट, सोल्ड दिया है 16, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा 3,100, 3,100, तो 3,100 क्लोजिंग स्टॉक आ गया 3,100, तो उसको वैल्यूएशन करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट जितना भी आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट इंटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई करोगे, 3,100 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेट, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो वैल्यू वो आ जाएगा। सिंपल है, ये हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये ऑलमोस्ट सेम है, और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है, डिफरेंट टाइप का। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट करोगे, सिंपल। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ
cost and profit for the पीरियड एंडेड, इसको नहीं दिया है तो पीरियड एंडेड, पर्टिकुलर पीरियड नहीं एब्सेंट है इसमें, तो यहाँ इससे करेंगे। यूनिट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, इसका मतलब है यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। 50,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, टोटल सेल हो गया 15,000, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये सब क्वेश्चन में नहीं है, तो सेपरेट यूनिट कॉलम यहाँ पर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल्स ये तुम्हारा लिखोगे जैसे एज यूजुअल, ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स, तुम्हारा डिटेल्स, ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। यहाँ पर लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड और एक्सपेंसेस ऑन परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो तुम्हारा इसमें रॉ मेटल कंज्यूम हम फाइंड आउट कैसे करते थे, वो फॉर्मूला वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में रॉ मेटल कंज्यूम गिवन है तो कैलकुलेशन क्यों करेंगे, तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, लिखेंगे 91,000 सिंपल, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर जो है ऐड हो जाएगा 29, वन लाख 1,20,000, 1,20,000 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या करना, सॉरी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें है क्वेश्चन में, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में है, तो उसको ऐड करेंगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में है प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट जितना भी डायरेक्ट तुम्हारा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर ये सब आएगा ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है 29, ये हो गया तुम्हारा 29,000, ये हो गया तुम्हारा 10,000, ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड करोगे सब पहले 39, तो 1,30,000, 1,30,000 आ जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, पीसी प्राइम कॉस्ट। और सिंपल वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड अगर क्वेश्चन में 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 29,000, 29,000 का 80% तुम्हारा कितना आएगा, $200, 23,200 ऐड करो 200, $1,53,000, ये तुम्हारा आ गया वर्क कॉस्ट। और नेक्स्ट तुम्हारा ऐड हो जाएगा वर्क्स ओवरहेड, और नेक्स्ट तुम्हारा ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% परसेंटेज दिया डायरेक्ट नहीं दिया, वर्क कॉस्ट का 1,53,200, 1,53,200
का 10% आ जाएगा तुम्हारा 15,320, 15,320 आ जाएगा। ऐड कर दोगे इसको 0 2 5 8 6 1 1,68,520 1,68,520 तुम्हारा आ जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर यूनिट कॉलम तो नहीं किए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा आ जाएगा 1,68,520 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है ₹2 पर यूनिट सोल्ड, ₹2 पर यूनिट सोल्ड 50,000 1 लाख आ जाएगा, तो 2,68,520 2,68,520 आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। क्या गया? टोटल कॉस्ट, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ गया। और तुम्हारा देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया होगा, नहीं तो अगर सेल्स क्वेश्चन में सेल्स इंफॉर्मेशन नहीं तो ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉफिट इंफॉर्मेशन होगा, प्रॉफिट और सेल। अगर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा सेल्स नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इसमें सेल्स नहीं है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है, लिखा है इसमें कि प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, बस सेल्स प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। लेकिन सेल तो नहीं है, 20% कैसे करेंगे? सेल तो नहीं, 20%। अगर क्वेश्चन में 20% ऑफ कॉस्ट होगा तो वो अलग बात है, टोटल कॉस्ट आ गया और 20% निकाल देंगे, इजी होगा। लेकिन यहाँ पर सेल्स का 20% है, लेकिन सेल्स नहीं दिया है क्वेश्चन में। इस केस में क्या करेंगे? तुम कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि तुम्हारा कन्वर्सन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल को प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज में। सपोज यहां पर लेट सेल्स 100, तुम्हारा प्रॉफिट क्वेश्चन में है ना, प्रॉफिट कितना दिया है सेल्स का 20%, का मतलब है 20, तो कॉस्ट कितना है 100 माइनस 20 80 आ जाए। और परसेंटेज ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे आएगा? P/C इंटू 100। मैंने लिखा नहीं यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन, प्रॉफिट का यहाँ पर कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 20 डिवाइड बाय कॉस्ट 80 था, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25%। तो प्रॉफिट 20% ऑन सेल इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। हो गया क्लियर? कैसे हो गया ये कैसे आ गया फाइनल? यहाँ पर दिस इज द सॉल्यूशन। लेट सेल्स 100, प्रॉफिट 20% क्वेश्चन में गिवन है, 20%, 20 कॉस्ट माइनस हो जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट आ गया 80,
और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट का टोटल कॉस्ट आ गया, लेकिन प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो सेल्स में दिया है, लेकिन सेल्स यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है। तो जस्ट यू कन्वर्ट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये हो गया कितना? फाइंड आउट किया 25% आ गया, 25%। तो प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 268520 क्लियर। इसका 25% कंक्लूजन करो, तुम्हारा आ जाएगा कितना? तुम्हारा आ जाएगा 67,130 67,130 67130 ये तुम्हारा प्रॉफिट। और सेल्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, सेल आ जाएगा 5 6 5 3 और ये हो गया तुम्हारा 3। तो 3,35,650 रुपीज ये तुम्हारा सेल्स। और ऐसे और एक शॉर्टकट भी है, इसे कर सकते हैं। तुम्हारा परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज is on sale into total cost, into total cost। ये भी हो सकता है, इससे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा 25 डिवाइडेड बाय हाँ सॉरी 20, यहाँ पर क्वेश्चन में 20 और यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ पर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट 268,520 ये तुम्हारा। इससे भी हो सकता है, अगर ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 180,268,520 जो कि तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 67,130 तो 67,130 ऐसे भी आ सकता है इससे। और ऐसे कन्वर्जन केस भी हो सकता है, इसे कन्वर्जन कर सकते हो, परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल को परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करोगे। पहले 25 आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से वो वैरी करेगा। और यहाँ पर तुम सपोज अगर शॉर्टकट में करोगे, शॉर्टकट में इससे हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। क्लियर? क्या आसुँच कि देख लो डाउट कि पचारे किसी बंद है मो जो डिस्टर्ब हो गला ना कौन है प्रथम तो कहते आप कहते 6 जन देखते 5-6 जन देखते कौन है छाड़ रेकर्ड हो देखा। थैंक यू। तो दिस इज द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गया। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो डाउट होगा तुम पूछोगे, उसको वर्कआउट करो, जितना प्रैक्टिस करोगे तो डाउट ऐसे आएगा। थैंक यू।
डिस्टर्ब